تو آئیے سنتے ہیں آج ایک ناقابل فراموش خوفناک کہانی۔ ابھی مجھے اس راستے پر چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے مجھ پر نہایت جارحانہ انداز میں حملہ کیا تھا اور مجھے لگنے والا دھکا اتنا شدید تھا کہ میں اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا، جس کے نتیجے میں مجھے ماتھے پر چوٹ آ گئی۔ جو ہی ذرا ہوش بحال ہوا، میں نے اس سمت دیکھا جہاں سے مجھ پر حملہ ہوا تھا، تو خوف کی ایک تیز لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ اس طرف ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو اپنا منہ کھولے آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں شدید خوف اور حیرت کی لپیٹ میں تھا۔ میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید کوئی لٹیرا وغیرہ ہوگا جس کا ارادہ مجھے لوٹنے کا ہو، لیکن اتنے بڑے اژدہے کو دیکھ کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ میں نے اژدہے کے متعلق سنا تو تھا، لیکن اتنے قریب سے دیکھنے کا اتفاق آج ہوا تھا۔ مجھے میری بدبختی اس راستے پر لے آئی تھی۔ حالانکہ جب بھی مجھے گاؤں جانا ہوتا تھا میں مین روڈ سے گاڑی کے ذریعے جاتا تھا، لیکن آج مجھے کوئی گاڑی نہ ملی تو میں نے شارٹ کٹ اختیار کرنے کا سوچا۔ گاؤں شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور اس لیے میں نے پیدل ہی جانے کا ارادہ کر لیا۔ اگر گاڑی کے انتظار میں کھڑا رہتا تو رات یہیں ہو جاتی۔ دراصل مجھے اپنے دوست احمد کے گاؤں جانا تھا۔ اس کا گاؤں سرسبز پہاڑی علاقے میں تھا۔ قدرتی مناظر میری کمزوری تھے اور جیسے ہی مجھے موقع ملتا میں ایسے علاقوں کو دیکھنے نکل پڑتا۔ اب بھی ایسا ہی تھا کہ جو ہی مجھے چند روز کی چھٹیاں ملی تو میں احمد کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ احمد میرا کالج کا ساتھی تھا اور اب ہم ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ کسی گھریلو کام کے سلسلے میں وہ پہلے ہی چھٹیوں پہ جا چکا تھا اور میں اس کے بغیر بہت بوریت محسوس کر رہا تھا۔ میں اطلاع دیے بغیر ہی روانہ ہوا تھا کیونکہ میرا ارادہ احمد کو سرپرائز دینے کا تھا اور اب یہ سرپرائز مجھے مہنگا پڑ گیا تھا۔ میں کوہنیوں کے بل آہستہ سے اٹھا۔ اژدہا میرے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر ایک بار میں اس کے ہاتھ لگ جاتا تو پھر میرا بچ نکلنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ پہاڑی علاقہ تھا، ایک طرف تو پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی۔ اگر ذرا سی بھی بھول چک ہو جاتی یا پیر پھسلتا تو وہ بات تھی کہ پہاڑ سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اژدہا شاید میرا ارادہ بھانپ گیا۔ اس نے جو ہی اپنا غار جتنا منہ کھولا میرے چوتھا طبق روشن ہو گئے۔ جو ہی اژدہے نے میری طرف تیزی سے بڑھنے کی کوشش کی میں نے اللہ کا نام لے کر دوڑ لگا دی۔ وہ بھی فوراً میرے پیچھے بھاگا۔ پتھریلا علاقہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھاگنے میں بے حد دشواری ہو رہی تھی۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ بھی رہا تھا اور اللہ کو بھی یاد کر رہا تھا۔ اچانک اژدہا اپنی جگہ سے اچھلا اور مجھے دبوچنے کے لیے میری طرف بڑھا۔ میں نے گھبرا کر جو ہی آگے بڑھنا چاہا میرا پاؤں ایک پتھر پر سے پھسلا اور میں اونچائی سے نیچے لڑکتا چلا گیا۔ میری آنکھوں نے اس وقت جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میں شدید حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جو ہی میں نیچے گرا وہ اژدہا ایک انسان میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس نے بھی میری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت چکا تھا۔ میری آنکھ ایک عجیب سی آواز سن کر کھلی۔ ذہن پر زور دیا تو سارے واقعات یاد آ گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میں اس وقت ایک بہت بڑے غار میں تھا اور مجھ سے کچھ دور آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن تھا اور بہت سے لوگ اس کے گرد سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آتش پرست ہیں۔ کسی کی بھی توجہ میری طرف نہ تھی کہ وہ اپنی عبادت میں مگن تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ غار سے باہر نکل کر دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں غار کے دہانے پر تھا، لیکن یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے کہ میں جہاں کھڑا تھا اس سے نیچے ہزاروں فٹ کی گہرائی تھی اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ کون ہے جو مجھے یہاں لایا ہے اور کیسے، جبکہ یہاں آنے جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ سوچتے ہی جیسے میں پلٹا اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خاموشی سے میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ لمبا قد، پھیلی ہوئی ویران آنکھیں، گال اندر کو دھسے ہوئے اور چہرے پر چھائی خباثت مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ تم یقیناً حیران ہو رہے ہوگے نا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو اور کون تمہیں یہاں لایا ہے۔ میں وہی ہوں جو اژدہے کے روپ میں تمہیں یہاں لایا۔ میرے بارے میں جلد ہی تمہیں بہت کچھ پتا چل جائے گا۔ فی الحال تمہیں اتنا بتائے دیتا ہوں کہ میرا نام زنگال ہے۔ میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے پیچھے آؤ۔ چاروں ناچار میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے لیے ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں گپ اندھیرا تھا۔ ہمارے وہاں قدم رکھتے ہی ایک دم سے روشنی ہو گئی اور میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ میں آج بھی نہیں بھول پاتا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے انسان زنجیروں میں قید تھے۔ بہت لمبے لمبے بد شکل قداور لوگ انہیں کسی چیز سے مار رہے تھے۔
बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने हवास को काबू में रखा। ये मंजर कैसा लगा तुम्हें? यकीनन पसंद नहीं आया ना? अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें यहाँ मैं एक अहम मकसद के तहत लाया हूँ। जो काम मैं तुम्हें कहूंगा वो बहरहाल तुम्हें करना होगा, वरना अपना अंजाम इन लोगों से भी बुरा देखोगे। मैं एक जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। अपने कबीले में मैं निहायत जिद्दी और सरकश मशहूर हूँ। मुझे किसी पर रहम नहीं आता। हर वो काम करता हूँ जो किसी को अजियत देने का बाइस बनता हो। एक दिन एक आमिल ने मुझे कैद कर लिया और मुझसे अपना हर गंदा काम करवाने लगा। जब मैंने उसे हर तरह से खुश किया तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर आजाद करूंगा कि अगर तुम मुझे 10 मासूम बच्चों का मुर्दा जिस्म ला दो और उन बच्चों को तुम अपने हाथों से कत्ल करोगे। मैं फौरन रजामंद हो गया, क्योंकि ये तो मेरे लिए कोई मसला ही ना था। मैं फौरन इंसानी दुनिया में गया। एक बच्चे को मुंतखब करके जो ही उसे मारने के लिए हाथ लगाया, मुझे करंट लगा और किसी नामालूम सी आग में खुद को जलता हुआ महसूस करने लगा। जब मैं उस आमिल के पास वापस आया तो उसने मुझे कहा कि उस बच्चे की गर्दन में जो तावीज था उस पर नूरी कलाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे छूते ही मेरे जिस्म में आग सी महसूस होने लगी। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब तुम मेरे लिए 10 बच्चों को लाओगे। तुम्हें सब समझ तो आ गया होगा ना? अब मेरे साथ आओ। मैं उसे इनकार करना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं सहरज़दा सा उसके पीछे पीछे हो लिया। चलते चलते हम ऐसी जगह पर आ गए जहाँ से आसमान साफ नजर आ रहा था। वो जगह एक गोल दायरे की सूरत में थी। यूं लग रहा था जैसे उन पहाड़ों को तराश कर उनको गोल दायरे की सूरत में बनाया गया है। उसके दरमियान एक अजीबो खलकत आदमी बैठा हुआ था। उसके आगे एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें बहुत सा खून और गोश्त रखा हुआ था। अचानक उस आदमी ने नजर उठाकर हमारी तरफ देखा। ले आए हो तुम अपने काम के आदमी को? जी मेरे आका, मैं इसे ले आया हूँ। आप अपना अमल शुरू कीजिए। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम इस नौजवान को यहीं छोड़कर जाओ। जो हुक्म। ये कहकर जंगाल फौरन गायब हो गया। अचानक वो बूढ़ा उठा और एक झटके से मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझे कंधों से थाम कर झंझोड़ डाला। उसके झंझोड़ने से यूं महसूस हुआ जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल रही हो। जूं जूं उसके झंझोड़ने की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, मेरी अजियत में भी इजाफा हो रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गायब हो चुकी थी। मेरा सारा बदन पसीने से भीग चुका था। ना जाने वो क्या पड़ रहा था, लेकिन मुझे अपना वजूद बहुत भारी महसूस होने लगा। आहिस्ता से उसने मुझे छोड़ दिया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। होश में आने के बाद मेरा पहला एहसास यही था कि किसी वजनी चीज के नीचे मैं दब गया हूँ। जब मेरा सांस घुटने लगा तो मैंने जोर लगाकर उठने की कोशिश की और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था। अचानक मुझे एक आहट सुनाई थी। मैंने मुड़कर देखा तो जंकाल चेहरे पर सफाकी लिए मुझे देख रहा था। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मैं किसी रोबोट की मानित उठता चला गया। कुछ दूर जाकर मुझे एक तालाब नजर आया जो पानी से भरा हुआ था। जंगाल ने मुझे उसमें उतरने को कहा। जैसे ही मैं उतरा, वो तालाब का पानी खून में तब्दील हो गया और उससे इंतहाई नागवार बू उठने लगी। मैं बहुत बदहवास हो गया। उसे निकलना चाहता था, लेकिन मेरा जिस्म मेरे इख्तियार में नहीं था। फिर जंगाल ने मुझे इशारा किया और मैं उससे बाहर निकल आया। अब मैं तुम्हें इंसानी दुनिया में भेज रहा हूँ। तुमने वहां से हर रोज एक बच्चे को कत्ल करके लाना है। अगर तुमने हमारे हुक्म पर अमल ना किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। फिर उसने मुझे अपनी आंखें बंद करने को कहा। मैंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसकी आवाज पर आंखें खोली, मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मैं वापस अपनी दुनिया में मौजूद था और मेरे आसपास बहुत से लोग आ जा रहे थे। अब तुम ऐसा करो, करीबी पार्क का रुख करो और वहां से किसी बच्चे को उठा कर लाओ। जंगाल की आवाज मुझे मेरे कानों में सुनाई देने लगी। मैं करीबी पार्क गया। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे। इतने में एक बच्चा खेलता हुआ मेरे करीब आ निकला। जंगाल की आवाज फिर उभरी। फौरन इस बच्चे को उठाओ और पार्क से बाहर किसी वीरान जगह पर ले आओ। मैंने उसकी बात पर अमल करते हुए जो ही बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक धमाका हुआ और एक सफेद रेश बुजुर्ग मेरे सामने थे। उनकी आंखों से जलाल टपक रहा था। उन्होंने मेरे हाथ बढ़ाने से पहले ही बच्चे को उठाया और मुझसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। फिर गरजदार आवाज में बोले, तू बाज नहीं आया मलून? कितनी दफा तुझे समझाया कि अपनी इन गलत हरकतों से बाज आ जा, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। अब इन मासूम बच्चों के खून से एक बेगुनाह इंसान के हाथ रंगना चाहता है? तू सुन ले जंगाल, अब तेरा खेल खत्म। पहले ही तुझे बहुत ढील मिल चुकी है, लेकिन वो हमारी गलती थी। अब मजीद इस धरती को तेरे बोझ की जरूरत नहीं रही। अब तो इंतजार कर अपनी मौत का।
जवाब में जंगाल की मुझे कानों में कोई आवाज सुनाई न दी। भाग गया बुज़दिल, कहाँ तक भागेगा? तेरी मौत तुझे मुझ तक लाएगी। इतना कहकर वो बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए बोले, नौजवान, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन शुक्र है कि मुझे बर वक्त पता चल गया, वरना सारी जिंदगी वो तुमसे घिनौने काम करवाते। लेकिन अब वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। बुजुर्ग ने ये कहकर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने आंखें बंद की तो मुझे महसूस हुआ जैसे मैं हवा में परवास कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे अपने कदमों तले ठोस जमीन का एहसास हुआ और उसके साथ ही बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी जो मुझे आंखें खोलने का कह रहे थे। मैंने आंखें खोली और हैरान रह गया। मैं उस वक्त एक निहायत हसीन वादी में मौजूद था। सरसब्ज़ व शादाब इलाका, बहते हुए चश्मे, खूबसूरत फलों से लदे हुए दरख्तों पर परिंदे शोर मचा रहे थे। बेटा, ये सब कुछ बाद में देखते रहना, फिलहाल हमें उस कमबख्त, आमिर और खबीज जंगाल का कुछ करना है और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिलहाल तुम आराम करो, मैं तुम्हें बाद में तफसील से आगाह करूंगा। मैं बुजुर्ग से बहुत सी बातें पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से मना कर दिया और मुझे लेकर एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में दाखिल हो गए। अंदर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक तरफ खाना रखा हुआ था। खाना देखते ही मैं उस पर टूट पड़ा। इतना लजीज खाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया था। खाना खाते ही मुझे नींद ने घेर लिया। मैं सोने का इरादा करके जो ही लेटा तो मेरे जिस्म पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ का इजाफा हो गया और मेरी सांस रुकने लगी। मैं फौरन उठकर बैठ गया। उस आमिर और जंगाल ने जो मुझ पर अमल किया था उसका असर अब भी बाकी था। अब अंदर बैठना मेरे लिए माहौल हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया और हसीन वादी की सैर करने लगा। इतना तो मैं बहरहाल जान गया था कि ये इंसानी दुनिया हरगिज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि बुजुर्ग का रवैया मुझसे अच्छा था और यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं था। सैर करते करते मैं काफी दूर निकल आया और थकन भी महसूस करने लगा। मैंने करीबी चश्मे में नहाने का इरादा किया और उसमें कूद गया। इतना ठंडा और साफ सुथरा पानी मुझे सुकून देने लगा। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने आसपास नजर दौड़ाई लेकिन कोई नजर न आया। मैंने अपना वहम समझा और तालाब से बाहर निकल आया, लेकिन ये एहसास बदस्तूर मेरे साथ रहा कि मुझे कोई देख रहा है। अभी मैं थोड़ी ही दूर आया था कि मैंने एक दरख्त से लड़की को कूदते और एक तरफ भागते देखा और भागते भागते वो पीछे मुड़कर भी देख रही थी, ऐसे जैसे मैं कहीं उसके पीछे तो नहीं भाग रहा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि बुजुर्ग अचानक मेरे सामने आ गए और बोले, क्या बात है बेटा? मैंने जवाब में उनको सारी बात बता दी कि जैसे ही मैं लेटता हूँ मुझ पर बोझ आ पड़ता है। ये सुनकर वो बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, उस कमबख्त आमिल ने तुम पर अमल करके एक बदरू को तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर दिया था ताकि तुम उसका हर हुक्म मान सको। अब चूंकि तुम मेरे पास हो तो वो बदरू हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिस वक्त तुम सोने के लिए लेटते हो वो तुम्हारे जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से तुम्हें बोझ महसूस होता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर उन बुजुर्ग ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और फिर मुझ पर फूंक मारी। जैसे ही उन्होंने मुझ पर फूंका, मैंने अपने सर से एक बोझ हटता महसूस किया। फिर वो बोले, वो कमबख्त जंगाल और आमिर जरूर किसी साजिश में मसरूफ होंगे। वो तुम्हें फिर से अपना कैदी बनाने के सो जतन करेंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ हर तरह से महफूज हो। तुम कुछ देर आराम करो, मैं बाद में तुम्हें वो तरीका समझाऊंगा जिससे उस नापाक आमिल और जंगाल का वजूद हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाएगा। ये कहकर वो बुजुर्ग चले गए और मैं झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। 2 दिन हो गए थे लेकिन बुजुर्ग का कुछ पता नहीं था। लेकिन इस दौरान जब भी मैं बाहर निकलता वो 2 आंखें मुझे तकती रहती। आखिर एक दिन मुझे उन्हें जानने का मौका मिल ही गया। हुआ यूं कि मैं तालाब की तरफ नहाने की गर्ज से जा रहा था कि मुझे पास वाले दरख्त के पीछे आहट सी महसूस हुई। मैं सर झुकाए चला जा रहा था, लेकिन दरख्त के पास से गुजरते हुए अचानक अपना रुख दरख्त की तरफ मैंने फेर लिया तो मुझे वो अपने सामने पाकर भागना चाहती थी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ फेर लिया। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं साकित रह गया। इतना हसीन चेहरा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तुम हर रोज मेरी निगरानी क्यों करती हो? जवाबन वो खामोश रही और अपना हाथ छुड़वाने लगी। बताओ मुझे, तुम हर वक्त मेरे ताकुब में क्यों रहती हो? मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम्हारी आंखों को अपने ताकुब में पाता हूँ। कौन हो तुम और किसके लिए ऐसा करती हो? आप पहले इंसान हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, वरना आज तक तो कोई इंसान ना हमारी दुनिया में आया और ना मैंने देखा था। मैं नहीं जानती थी कि इंसान कैसे होते हैं, लेकिन जब से आपको देखा है हर वक्त देखने को दिल करता है। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों है, लेकिन जो भी है मुझे उससे सुकून मिलता है। तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम शांता है और मैं उन्हीं बुजुर्ग की बेटी हूँ जो तुम्हें यहाँ लाए हैं। अब मैं चलती हूँ। इतने में वो हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। मुझे उन बुजुर्ग का बहुत इंतजार था, लेकिन न जाने क्या बात थी, वो नहीं आ रहे थे। मेरा इरादा शांता से पूछने का था, लेकिन वो भी अब गायब थी। शांता को तो एक नजर देखते ही मुझे जैसे उससे इश्क सा हो गया था। वो मुझे नजर नहीं आ रही थी और मेरी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। उस रोज में दिल की बेकरारी से घबराकर बाहर निकल आया। मेरा रुख उसी चश्मे की तरफ था जहाँ शांता से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं दिल ही दिल में उससे मिलने की दुआएं मांग रहा था और फिर दुआ कबूलियत का दर्जा पा गई, क्योंकि मैंने उस दरख्त के पास शांता को खड़े देखा जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया। कहाँ गायब थी तुम? मुझे इश्क की राह पर डालकर खुद मुंह मोड़कर चली गई। बताओ मुझे। जवाब में उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो या मैं अकेली इस आग में जल रही हूँ? मैंने आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, वरना मैं हर हाल में आती। मैंने शांता से बुजुर्ग के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि बाबा एक खास अमल में मसरूफ हैं, आज शाम तक वो फारिग हो जाएंगे। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की और सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारा। रात में वो बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, अब वो वक्त आ गया है कि जंगाल और उस आमिल के नापाक वजूद से इस धरती को पाक कर दिया जाए। मैं खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने मुझे पानी की एक बोतल दी और बोले, मेरे लिए उन्हें खत्म करना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने जो अमल किया उसमें मुझे पता चला कि उन दोनों की मौत एक इंसान के हाथों होगी, और इस अमल में मुझे उनको मारने का तरीका भी बताया गया। इसके मुताबिक तुम्हें वहां पहुंचकर ये पानी जिस पर मैंने अमल किया हुआ है, उन दोनों की बेखबरी में उनके ऊपर छिड़क देना है, वरना वो तुम पर हमला भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे आंखें बंद करने को कहा। जब मैंने आंखें खोली तो हैरान रह गया। मैं उन्हीं पहाड़ों के दरमियान मौजूद था जहां पहली बार जंगाल मुझे लाया था। मेरे हाथ में वो पानी की बोतल थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अहाते में दाखिल हो गया। वहां पहले दिन की तरह नागवार सी बू फैली हुई थी और चांद की रोशनी की वजह से हर चीज वाज़ेह नजर आ रही थी। मैं आगे बढ़ा तो मेरे कानों में उनकी आवाजें सुनाई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं उनके बहुत करीब पहुंच गया। उनकी पुश्त मेरी जानिब थी। वो दोनों अपनी बातों में मगन थे। मैंने आहिस्ता से बोतल का ढक्कन खोला और जैसे ही उन पर पानी फेंकने के लिए बोतल को बुलंद किया तो जंगाल की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने चीख कर आमिर को मतवज्जा किया, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर कोई वार करते, मैं बोतल का पानी उन पर फेंक चुका था। पानी का उन पर पड़ते ही उनकी चीखें आसमान को लरजा रही थी। एकदम आग भड़क उठी। आग के शोले बहुत बुलंद हो चुके थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीखें मादूम होती गईं और आखिरकार बिल्कुल खत्म हो गई। शोलों के खत्म होते ही इतनी जोर की आंधी चली कि पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर गिर रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती थी कि मुझे कोई भी न लगा। 10-15 मिनट बाद आंधी थमी और उनकी राख भी गायब हो चुकी थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाहर आ गया। बाहर वो शफीक बुजुर्ग मेरे मुंतजिर थे। उनके चेहरे पर खुशी के आसार थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरा शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन मैंने चले जाना था। जैसे ही सुबह हुई मैं उस चश्मे की तरफ रवाना हो गया। मुझे यकीन था कि शांता जरूर मेरी मुंतजिर होगी, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। वहां शांता मौजूद नहीं थी। मैंने मतलाशी नजरों से इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहीं नजर न आई। अचानक कंधे पर किसी के हाथ का बोझ महसूस करके मैं फौरन पलटा। मेरा ख्याल था कि शांता होगी, लेकिन वहां उन बुजुर्ग को देखकर मैं हैरान रह गया। उनकी आंखों में दुख की वाज़ेह लहर मैंने देखी। कुछ देर बाद वो बोले, बेटा अब तुम जाओ अपनी दुनिया में। तुम जिसके मुंतजिर हो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। पर वो क्यों? वो कहाँ गई? वो जानती है कि आज मैंने चले जाना है तो क्यों नहीं आई? मैंने एक सांस में कई सवाल किए। शांता की शादी हो गई है और अपने शोहर के साथ यहाँ से बहुत दूर चली गई है। अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे।